ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف 4 ملکی دورے پر کل روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم ترکیہ پہنچیں گے۔ ترکیہ کے بعد وزیر اعظم ایران کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم ایران کے بعد آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ وزیر اعظم چاروں ممالک کے اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر ان ممالک کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کے ان دوروں کے باعث وفاقی بجٹ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی کا پانی روکنا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رضوان سعید شیخ نے کہا کہ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کی کوئی شک یا گنجائش نہیں ہے۔ عالمی برادری پانی کو بطور ہتھیار استعمال کی حمایت نہیں کرے گی۔ پاکستان کے سفیر نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی سے متعلق امریکی قیادت کا کردار قابل تحسین ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے داعی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت سے متعلق امریکی صدر کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب سائمہ سلیم نے بھارت کو کہا ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی بند کرے اور بامعنی مذاکرات کا آغاز کرے۔ سلامتی کونسل میں کھلے مباحثے کے دوران سائمہ سلیم نے کہا کہ ہندوستان نے ایک بار پھر گمراہ کن معلومات، انحراف اور انکار کا سہرا لیا ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے گول مول باتیں حقائق کو نہیں چھپا سکتی۔ ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں کو بے دریغ قتل اور زخمی کرتا ہے، پاکستان پر بلا اشتعال حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ ہندوستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کی سرپرستی کرتا رہا۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ اگر ہندوستان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اس واقعے کی غیر جانبدار، معتبر اور اسدانہ تحقیقات پر رضامند ہوتا۔ ہندوستان نے دریاؤں کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی ہے، جو پاکستان کی 24 کروڑ عوام کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ پانی زندگی ہے، جنگ کا ہتھیار نہیں۔ 6 سے 10 مئی کے دوران ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا اور بلا اشتعال حملے کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ مودی کی جنگی جنونیت نے عبادت گاہوں کو بھی نہ چھوڑا۔ سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم مار کی ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملے کے خلاف ICC میں شکایت درج۔ مار موومنٹ کا بھارتی فوج کے مبینہ ڈرون حملے پر عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کا مطالبہ۔ 7 اور 8 اپریل کی رات بھارت کا ننکانہ صاحب پر ڈرون حملہ پاکستانی افواج نے کامیابی سے پسپا کیا۔ بھارت نے 1971 میں کرتارپور صاحب پر بھی بم گرایا تھا۔ سکھ تنظیم مار کی یاد دہانی۔ سکھ تنظیم کے مطابق مذہبی مقامات پر حملے بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عشائیہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں سیاسی قیادت اور مسلح افواج کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ نے عشائیے میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ایاز صادق، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور گورنر نے بھی عشائیے میں شرکت کی ہے۔ DG ISPR نے بھارت کی پراکسی وار کو فتنل ہندوستان کا نام دے دیا۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کی 20 سالہ تفصیلات دنیا کے سامنے کر دیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ 2009 میں پاکستان نے شواہد بھارت کے وزیر اعظم کو دیے۔ گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کی پشت پناہی کا اعتراف بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت خطے میں امن کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ 21 مئی کو بھارت کے حکم پر فتنل ہندوستان نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ بھارت کی دہشت گردانہ ظلم کی شکل ہے۔ ان حملوں میں کوئی بلوچی یا پاکستانیت نہیں ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کا جنگ بندی میں امریکی کردار کا اعتراف۔
पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत मुसलसल जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा। भारतीय हुकूमत और सेक्रेटरी खारजा की जानिब से बारहा जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तरदीद की जाती रही। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का मुझसे राबता हुआ। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर वेंस ने वजीर आजम मोदी से राब्ता किया। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारतीय हुकूमत ने जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद जंगबंदी में अमरीकी किरदार से मुसलसल इनकार किया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय न हो सका। ताहम IMF ने नए माली साल के बजट पर मज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने का एलामिया जारी कर दिया गया। IMF की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर इत्तेफाक राय के लिए आने वाले दिनों में मज़ाकरात जारी रहेंगे। IMF का वफ्द दौरा पाकिस्तान 19 मई को शुरू होगा। IMF वफ्द की क़यादत नितिन पोर्टर ने की है। पाकिस्तान के साथ हालिया मौशी सूरत हाल, कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद और आइंदा बजट पर मज़ाकरात हुए। पाकिस्तान के साथ मज़ाकरात तामीरी रहे। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म दोहराया। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी सरप्लस GDP के 1.6% तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तानी हुकाम के साथ टैक्स नेट बढ़ाने और मौसलात में इजाफे पर भी बातचीत हुई। और भारतीय प्रोपेगंडा बेनकाब, IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। मौसी लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छी और मस्बत खबर है। भारतीय प्रोपेगंडा मुस्तरद IMF ने तस्दीक की है कि इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। IMF की तर्जुमान जोली कोज़ेक कहती हैं कि बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम जरूरी शराइत को पूरा किया था। जोली कोज़ेक का ये रद्द-ए-अमल भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में था। भारतीय सहाफ़ी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जोली कोज़ेक ने वाज़ेह किया कि IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है कि ममालिक इन प्रोग्रामों के तहत कैसे काम कर रही हैं। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारत को मार्का हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना है। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मौतरफ निकले। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टिन फेयर का कहना था कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। उनका अंदाजा इस मुल्क के रवैये से लगाया जा सकता है जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हालात में ऐसा कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन तर्क की हो या मौके से पीछे हटा हो। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। मोदी की जारहाना पॉलिसियां भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर लग गई है, जबकि माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दिखाने पर $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुंच गई है। भारत की आलमी सतह पर जारहाना सिफारती और अस्करी पॉलिसियों के बाइस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया है। आलमी सियासी कशीदगी और भारत की जारहात के खेल के हवाले से बताएं तो खुलकर ही सामने आने लगे हैं कि सरमायाकार मोहतात हो जाएं। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने डिपोर्ट होने वाले अफराद पर FIR दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ताहम इजलास हुआ जिसमें डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज और पासपोर्ट मनसूखी का फैसला किया गया। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। 5 News। वेलकम बैक। आपको बताएं कराची में आतिशबाजी के वाकयात में कमी ना आ सकी। गुलिस्तान जौहर में वाक़ इमारत की बेसमेंट में आग लगने से 4 गाड़ियों को आग लग गई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ नूर इस्लाम से। जी नूर इस्लाम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर के इलाके राबिया सिटी
ब्लॉक डी के बेसमेंट पार्किंग में आतिशज़दगी के नतीजे में पार्किंग में खड़ी 4 गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल जलने का वाकया अब से कुछ देर कबल पेश आया है। आतिशज़दगी की इत्तला पर रेस्क्यू टीमों और फायर ब्रिगेड ने जाए वाक़ा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और पार्किंग में कूलिंग का अमल जारी है। इब्तिदाई तौर पर आतिशज़दगी की वजह सामने नहीं आ सकी थी, अलबत्ता अब बताया जा रहा है कि बेसमेंट पार्किंग में कार की बैटरी में आग लगने से वाकया पेश आया था। ताहम इमदादी टीमों ने बरवक्त आग पर काबू पाकर शहरियों को मजीद माली और जानी नुकसान से बचा लिया है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया नूर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार की देखभाल, मरम्मत और तज़ीनो आराइश के लिए वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की जानिब से ग्रांट दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। बाकी 3 सूबे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जानिब से ग्रांट नहीं दी गई। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। शकील नाइज साथ मौजूद है हमारे। शकील नाइज, बताइएगा। जी देखें, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार की देखभाल के लिए कायद-ए-आज़म मेमोरियल जो बोर्ड है वो एक कायम है और उसको वफाकी हुकूमत और 4 सूबे ग्रांट देते हैं, जिसकी वजह से इसके जो मामूलात के काम चलते हैं उनकी तज़ीन आराइश, मरम्मत और देखभाल होती है। इस वक्त जो दस्तावेजात हमें मौसूल हैं उसके तहत 4 सूबों में से सिर्फ सिंध जो है वो अपने शेयर देता है, बाकी वफाकी हुकूमत देती है और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब अपनी ग्रांट नहीं देते। इस सिलसिले में जो तफसीलात मेमोरियल बोर्ड को मंजूरी के लिए फराहम की गई उसके मुताबिक रवा माली साल में 29 करोड़ 91 लाख 63 रुपए ग्रांट की शक्ल में मिले हैं। वफाकी हुकूमत ने 10 करोड़ 80 लाख, हुकूमत सिंध ने 2 करोड़, कायद-ए-आज़म मज़ार फंड के जो उनका मुनाफा है उसमें से 13 करोड़ 5 लाख, खाने पीने के जो खोखे लगे हुए हैं उनसे 26 लाख 60 हजार रुपये, बाकी कायद-ए-आज़म में आने वाले अफराद से 3 करोड़ 25 लाख, एवान नवादरात कायद-ए-आज़म को देखने के लिए आने वालों से फीस की मद में 40 लाख रुपए, टेंडर और जलसे की फीस की मद में 15 लाख रुपए वसूल किए गए। ये तफसीलात मेमोरियल बोर्ड को पेश कर दी गई है, जिसमें 2023-24 का 25 करोड़ 24 लाख रुपए बजट मंजूर करने की इस्तदा की गई, जिसमें 4 करोड़ 33 लाख कायद-ए-आज़म फंड के शामिल है। रवा माली साल में जो 2024-25 है उसमें 34 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट मंजूर करने की गुजारिश की गई है, जिसमें 4 करोड़ 15 लाख रुपए का खसारा भी शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर से खबरें शामिल करते हुए बताएं, गाजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल बदमस्त और हाथ बना हुआ है। अमरी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अब तो यूरोप से भी आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में भी पूरे मुल्क में फ़लस्तीन तज़ार यकजहती के लिए बड़े बड़े मार्चेस हुए हैं। ट्रंप अरब ममालिक में भत्ता लेने के लिए आया था और अरब ममालिक अपनी रिवायत को फ़रोग़ करने के लिए भी तैयार हैं। अरब ममालिक के हुक्मरान सुन लें कि अब वो दौर नहीं जिसमें अवाम को दबाया जाएगा। और पेट्रोल की लेवी खत्म होनी चाहिए। अभी पहले 60 रुपए 70 फिर 80 और अब 100 रुपए की बात चल रही। टैक्स को रिवाइज किया जाए, इसी तरह बड़े बड़े जागीरदारों पे टैक्स लगाया जाए, बड़े काश्तकारों को फैसिलिटेट किया जाए। तीसरी बात यह कि बिजली और पेट्रोल की कीमत कम की जाए। बाकी भी हम इंशाल्लाह 29 तारीख को एक ऐसा सेमिनार कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जिसमें हम तमाम तजावीज़ को मुरतब करके हुकूमत को देंगे। हम अपने हिस्से का काम करेंगे और आवाम के सामने भी लेकर जाएंगे। हम जायज बात करेंगे और मौजूदा हालात के तनाजुर करेंगे। जहाँ जिसकी आबादी को ही सही काउंट नहीं किया गया, सबसे पहला जुल्म तो यही होता है। छूट की बुनियाद पर इसकी मर्दमशुमारी की गई है। लाइन ऑफ कराची में मैराथन रेस का इनकाद किया गया। डिफेंस फेज 8 में होने वाली मैराथन रेस में 1000 से ज्यादा शुरका ने हिस्सा लिया, जिसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद भी शामिल थे। ये रेस 4 मरहल पर मुश्तमिल थी, जिसका मकसद सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना था। आज के दिन दुनिया के कई ममालिक में मैराथन रेस का इनकाद किया जाता है, जो सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देने का एक जरिया है। इस इवेंट्स ने शहर की सेहतमंद जिंदगी की तरफ तवज्जो दिलाई और दौड़ने के शौकीन अफराद के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। दीगर खबरें शामिल करते हुए बताएं, कराची की भैंस कॉलोनी मंडी में भी ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। छोटे मियाँ, बड़े मियाँ और भोलू की धूम मची हुई है। सदर में गुज़श्ता रोज की जाने वाली बड़ी कार्रवाई में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान
हवाला हुंडी और सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग का कारोबार काफी अरसे से कर रहे थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाइस्ता जैदी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान FIA कहते हैं कि गिरफ्तार मुलजिमान हवाला हुंडी के जरिए बैरून मुल्क पैसे भेजते और वसूल करते थे। दफ्तर में छापे के दौरान 10 तोले सोने के 17 बिस्किट और 11 करोड़ रुपए की कसीर रकम बरामद हुई थी। FIA तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि गिरफ्तार मुलजिमान का गिरोह इस घिनौने धंधे में अरसे दराज से मुलविस था। FIA ने हवाला हुंडी और सोने की स्मगलिंग में मुलविस 5 मुलजिमान तो धर लिए। मरकजी 2 मुलजिमान सलीम और बासित की गिरफ्तारी कब अमल में आती है ये देखना अभी बाकी है। शाइस्ता जैदी, 5 न्यूज़, कराची। अफसोसनाक खबर के हवाले से बताएं कि गुजरात के 4 लापता नौजवान हादसे में जान बहक हो गए। गाड़ी सतक नाले के करीब खाई से मिल गई है। गुजरात से स्कर्दू जाने वाले 4 लापता नौजवानों का 1 हफ्ते के बाद सुराग मिल गया है। लापता सयाहों की गाड़ी सतक नाले के करीब गहरी खाई से मिल गई है। रेस्क्यू टीमों ने 4 नौजवानों की मौत की तस्दीक भी कर दी है। 4 नौजवान 12 मई को गुजरात से शुमाली इलाका जात की सैर को निकले थे। अहले खाना का कहना है कि 8 रोज कबल हुंजा से स्कर्दू की जानिब रवानगी से कबल नौजवानों के साथ आखिरी बार राब्ता हुआ। रेस्क्यू, जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से नौजवानों की तलाश के लिए दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में लापता नौजवानों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहम आज सुबह गाड़ी स्कर्दू के इलाके सतक नाले के करीब गहरी खाई से मिल गई है। बोट बेसन के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जांबक। मलीर 15 रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जांबक हुआ। दूसरी जानिब डालमिया शांति नगर के करीब डकैती मजामत पर फायरिंग से फरहान नामी शख्स जख्मी हो गया। शाइस्ता जैदी की रिपोर्ट देखते हैं। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात और फायरिंग का सिलसिला न रुक सका। कराची के इलाके बोट बेसन के करीब ट्रैफिक हादसे में तकरीबन 60 साल एक शख्स जान बहक हो गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल करके शिनाख्त का अमल जारी है। रात गए डालमिया शांति नगर के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से फरहान नामी शख्स जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तहकीकात की जा रही है। मलीर 15 रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जान बहक हो गया। जान बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त हाल ना हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। औरंगी टाउन के करीब फायरिंग से बिलाल नामी शख्स जख्मी हो गया, जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। वाकये की मजीद तहकीकात की जा रही है। शाइस्ता जैदी, 5 न्यूज़, कराची। उधर ANF का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ANF ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस क्रैकडाउन के दौरान 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान को भी धर लिया गया है। कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 37,80,000 रुपए से जायद मालियत की 41.200 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई है। चक्रागोट पुलिस वैन हमला केस का फैसला एक मरतबा फिर मौखर। अदालत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रईस मोहम्मद समेत 13 मुलजमान को पेश किया गया। चक्रागोट में 13 साल कबल पेश आने वाले पुलिस वैन पर हमले और अहलकारों के कत्ल के मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रईस मोहम्मद समेत 13 मुलजमान को पेश किया गया। अदालत ने इस 13 साल पुराने मुकदमे का फैसला एक मरतबा फिर मौखर कर दिया। और अमराज से कल्ब के अस्पताल में तलबा पर तशद्दुद के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त। मुकामी अदालत ने दरख्वास्त पर पुलिस और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में इलाज के बजाय तलबा पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। मुतासिरा तालिबा अतिया ने अस्पताल के अमले के खिलाफ एडिशनल एंड सेशन जज साउथ की अदालत में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
اور پاک افواج کی بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے سر فخر سے بلند کیا ہے. ہم جشن منا رہے ہیں اور دشمن اپنا منہ چھپا رہے ہیں. پشاور پریس کلب پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام روبینہ خالد نے کہا کہ اس جنگ میں بہت چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. جنگ کے دوران ملک دشمن اور محب وطن لوگوں کے چہرے سب کے سامنے آ گئے. ہمارے قائد نے کہا تھا کہ ہم 100 سال لڑیں گے لیکن دشمن کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. آپ دنیا میں کہیں بھیجنا چاہتے ہیں ہم جانے کو تیار ہیں. پاکستان کا موقف، کیونکہ یہ ایک جنگ تو سرحدوں پہ لڑی جاتی ہے، ایک جنگ لڑی جاتی ہے سفارتی سطح، لیکن افسوس کہ اس جنگ میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم ملک میں نکلیں گے اور آدھا گھنٹہ جو ہے روڈ پہ کھڑے ہوں گے. یہ ہماری جو تھی حکمت عملی تھی اس وقت کی، اور ہم نے ایک شاہراہ کا نام بدل کے اس کو رکھ دیا کہ یہ شاہراہ سری نگر ہے. یہ اس طرح سے نہ جنگیں جیتی جاتی ہیں، نہ جو ہے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے. اور ایک بیانیہ جو پٹ گیا بہت بری طرح سے، ہماری سرخروئی ہوئی کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ سب کو معلوم ہے. بجائے اس وقت میں اکٹھا ہونے کے، ملک کے لیے جو یکجہتی کا وقت تھا، آپ یہ راگ الاپ رہے تھے کہ بھئی اس کو باہر نکالو، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. نہ ڈی سی لاہور کا تحصیل رائیونڈ کا دورہ، صفائی اور سیوریج انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن شاہد عباس کھاٹیا، اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ LWMC اور واسا حکام ہمراہ تھے. اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ کے ڈپٹی کمشنر کو تحصیل میں جاری انتظامی امور اور آپریشنز پر بریفنگ دی گئی. عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی. ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کلین لاہور مشن پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. سید موسیٰ رضا کی روزانہ معمولات زندگی کے آغاز سے قبل صفائی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت، روزانہ صفائی آپریشن جاری رکھے جائیں. صہیونی دہشت گردوں کے اہل غزہ پر وحشیانہ حملے جاری ہیں. 24 گھنٹے مزید 76 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. شہادتوں کی مجموعی تعداد 53,800 سے زائد ہو گئی. فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے فلسطینیوں کی حمایت اور اہل غزہ پر اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میکرون، کیئر سٹارمر اور مارک کارنے انسانیت سے عاری انسان ہیں جبکہ ان کو انصاف اور انسانیت کی سمجھ نہیں ہے. ایتھنز میں مقامی اور یورپی ایجنسیز کی بڑی مشترکہ کارروائی، انسانی اسمگلنگ اور جعلی دستاویزات بنانے والے بین الاقوامی نیٹ ورک کا انکشاف. یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں مقامی پولیس نے یورپ کی مختلف ایجنسیز کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے دوران انسانی اسمگلنگ اور جعلی دستاویزات بنانے والے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا، جہاں ایک خفیہ لیبارٹری سے ہزاروں کی تعداد میں جعلی پاسپورٹ، شناختی کارڈز اور امیگریشن مہریں برآمد کی گئیں. حکام کے مطابق اس نیٹ ورک نے گزشتہ ایک سال میں تقریباً 4.8 ملین یورو کے جعلی کاغذات تیار کیے. پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اور مزاح نگار رنگیلا وہ صرف ایک اداکار نہیں تھے، ایک قہقہ، ایک رنگ، ایک احساس تھے جو ہر کردار میں زندہ نظر آتا تھا. مزاح کو وقار دینا ہو تو رنگیلے کا نام ذہن میں آتا ہے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں مگر ان کی یاد، ان کا فن اور ان کی مسکراہٹ ہر فلم فریم میں سانس لیتی ہے. 68 برس کی عمر میں رنگیلا دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا فن آج بھی زندہ ہے. ان کے کردار، ان کی آواز اور ان کے کہکے آج بھی فلم بینوں کی دلوں میں گونجتے ہیں. رنگیلا نے صرف اداکاری تک خود کو محدود نہیں رکھا، وہ ہدایت کاری، اسکرپٹ رائٹر، پروڈکشن اور حتیٰ کہ گلوکاری میں بھی اپنی پہچان بنا گئے. کہ تو گمراہ نہیں ہو سکتی، میرے تے ڈل نہیں سکتی. ارے ہون تے بڑا کچھ ہو سکتا ہے، گمراہ بھی ہو سکتی ہے تے ڈل بھی سکتی ہے، پر میرے پہلے قسم نے میں طلاق دیتی ہے تے اڑیا میں بدنام بھی بہت. ان کا خود پر فلمایا گیا نغمہ گا میرے منوا گاتا